Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Harshita, Sanskar, Divya, Om, Pranjal, Rajveer, Sanskar, Soham, Tanvi, Vedant, and Vivek. Okay, I hope you all are good. अच्छा, प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया था है ना? मुबारक सर ने प्रोग्रेशंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो आप लोगों का मैथ्स टेस्ट फर्स्ट भी हो गया था, क्यूमुलेटिव टेस्ट फर्स्ट भी हो गया है। एक काम करते हैं, पहले पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट 1, और इसमें जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर आप लोग पूछ लो। ठीक है, फिर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 में कोई डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 41 में थोड़ा एक्चुअली करेक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन में। लाइक दिस क्वेश्चन शुड बी 2x plus 3y is equal to 6√3। ये यहाँ पे रूट था ये, है ना? And 2x minus 3y is equal to 6. Then we have to find out the value of x into y. Okay, so who will explain this question? दिविजा, तनुज, ओजस, दिव्या एंड तन्वी, ये आप लोगों ने करेक्ट किया है। बाकी अर्किन, ओम, विवेक और श्रीवर्धन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41, हु विल एक्सप्लेन? बोलो। So may I? हाँ बोलो बेटे। Sir, 2x 2x plus 2x plus 3y हाँ is equal to 2x minus 3y minus 4ab. बेसिकली हाँ, लाइक दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर माइनस इक्वेशन second square, like a plus b whole square minus a minus b whole square. This expression equals to a plus b minus b. a plus b whole square minus a minus b whole square. This So equals a square minus b square. a square minus b square नहीं आएगा, थोड़ा और सोचो अच्छे से। A plus b into a minus b. नहीं, ये भी नहीं, और सोचो। a plus b whole square minus a minus b bracket square, ऐसा। फोर ए बी 4ab, हाँ बिल्कुल। देखो इसको ओपन करते हो ना, तो यू विल गेट a square plus b square plus 2ab, and while opening this expression, this equals to a square plus b square minus 2ab. यहाँ पे है नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के आउटसाइड नेगेटिव साइन, साइन विल गेट चेंज। ठीक है, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल, दिस इज माइनस इंटू माइनस यानी प्लस 2ab plus 2ab is like 2 apples plus 2 apples यानी कि 4 apples. So this equals to 4ab. इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है इस स्ट्रक्चर का? Like first plus second square minus first minus second square. This equals to 4 times first into second. Similarly, यहाँ पे भी first equation square minus second equation square. So you will get like this 2x plus 3y whole square minus 2x minus 3y whole square. And on the right side 6√3 square minus 6 square. Now left hand side equals to 4 times first number into second number, yani 4 into 2x into 3y. And on the right side 6√3 square. What is 6√3 square? 108. 36 into 3 yani 108, and 6 square 36. 36. 108 minus 36 70. 2. बिल्कुल ठीक है, और ये हो गया अभी 4 into 2 8 into 3 यानी 24 3 जा 72. So finally xy is equal to 3 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? So may I? Sir, shall I? संस्कार। Yes, sir. हाँ संस्कार बोलो।
given information is a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4 is equal to 322. ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने क्लास में, है ना? वहां Yes. पे 47 था, फिर स्क्वायर वगैरह कंसीडर करते हैं, 49 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 3 आता है. हाँ संस्कार बोलो. Sir, a square plus 1 upon a square whole bracket square a square plus 1 upon a square bracket square is equals to a raised to 4. is equal to, मतलब तुम ये ऐसा कंसीडर कर रहे हो बेसिकली, है ना? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर. ए स्क्वायर कैंसिल, यानी कि प्लस 2. ऐसा. नेक्स्ट बोलो. Sir, a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4 is 322. 322 plus 2 यानी 324 and 324 is perfect square of 18. it should be either 18 or minus 18, but a square positive, this is also positive. Positive plus positive will always be Positive. Positive. so minus 18 will not be considered. Okay, next one. Sir, again, a plus 1 upon a square is equals to a square plus 1 upon Again a we square can plus 2. consider a plus 1 upon a whole square is equal to a square plus 1 upon a square plus 2 times first number into second number, a into 1 upon a or a cancel. This is given as 18 plus 2, 20. 20. But I think a plus 1 upon a का यूज नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे a plus 1 upon a यूज नहीं होगा, क्योंकि फाइनली आपको a क्यूब माइनस 1 upon a क्यूब फाइंड करना है ना. तो एक काम करते हैं संस्कार, पहले a क्यूब माइनस 1 upon a क्यूब को ओपन करते हैं. तो इससे क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें कि यार इसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज होने वाले हैं. So this is like a cube minus 1 upon a whole cube, like a cube minus B cube. b cube, and this equals to a minus b in bracket a square plus b square, and then plus or AB. minus plus ab Plus. a into 1 upon a cube minus b cube. This expression equals to a minus b a square plus b square plus ab. AB. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी फाइंड आउट. ये वैल्यू है 18. नाउ वी नीड a minus 1 upon a, not a plus 1 upon a. Understood? Yes. Sir, if we find a plus 1 upon a, then we can find a minus 1 upon a. बेटा इतना कौन करने वाला है, आप डायरेक्ट फाइंड कर लो ना. a minus 1 upon a whole square, this is like a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. This value is 18. 18 minus 2, 16, and 16 is perfect square of 4. हाँ. तो a minus 1 upon a है 4. So ये वैल्यू है 4. This is given as 18 plus 1 9. and 19 4 जा 76. 76. अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी. अच्छा, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, इसके ऊपर एक शीट और शेयर करता हूँ आज लेक्चर के बाद में. थोड़ा टफ होगा वो, बट ट्राई करना, काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें. ठीक है, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करना है ना. हो सकता है उसमें आपको 25 में से जस्ट 10 क्वेश्चंस ही हो, बट ट्राई करना, वो इंपॉर्टेंट है. वो नेक्स्ट टर्म पे या फिर सेपरेट सेशन में हम लोग डिस्कस भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 43 में कोई डाउट है? Yes, sir. Can you explain the 43rd question? Who will explain question number 43? Question number 43 is x plus y whole cube plus x minus y whole cube plus 6x, and this is like x square minus y square, यानी x plus y into x minus y. बाकी इतना भी नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं है, आप जस्ट x plus y whole cube इस एक्सप्रेशन को ओपन करो. This is like a plus b whole cube, यानी a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab. Square. And this is like a minus b whole cube, a cube minus 3a square b plus 3 XY square. ab square, and then minus
वाई क्यूब, ठीक है, एंड यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, सो 6x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 6x क्यूब, 6x इंटू वाई स्क्वायर यानी माइनस 6xy स्क्वायर, करेक्ट है? ओके, नाउ दिस y क्यूब कैंसिल, और यहाँ पर 3x स्क्वायर y इज ऑल्सो कैंसिल्ड, 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर यानी 6xy स्क्वायर, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग है ओनली 2x क्यूब प्लस 6x cube. like 2 apples plus 6 apples, यानी फाइनल आंसर इज 8x cube. ऑप्शन डी। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना? कुछ लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है? No, sir. क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये सारे शीट के ही क्वेश्चंस हैं, आपको एक शीट सेंड किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 वीक्स पहले, तो ये वहीं पे है क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, x plus y whole square minus z square, this value is given as 4y plus z whole square, माइनस होगा यहाँ पे, minus x square is equal to 9 and this is given as 36, then we have to find out the value of x plus y plus z. So first information है x plus y whole square minus z square, this is given as 4, y plus z whole square minus x square, this is given as 9, and then z plus x whole square minus y square, this is given as 36. Finally, we have to find out the value of x plus y plus Yes. z. Again, this expression is the same as a square minus B square. b square, यानी first plus second into first minus second. So first plus second यानी x plus y plus z, and first minus second यानी x plus y minus Z. z is equal to 4. Again, this is a square minus b square, a plus b यानी y plus z plus x यानी x plus y plus z into a minus b, y plus z minus x, this is given as 9. देखो ये शीट में है क्वेश्चन, यहाँ पे ये शीट सेंड किया था आपको, ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अच्छा ओके, शीट ही दिख रहा है ना, अभी देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, एग्जांपल 12, सेम और डिफरेंट? Same. सेम क्वेश्चन है, अभी इसीलिए बोलते हैं आपको कि सॉल्व एग्जांपल्स भी गो थ्रू करना चाहिए। दिस इज सॉल्व एग्जांपल 12। अगेन a square minus b square, a plus b, a minus b is equal to 4. Similarly, y plus z whole square minus x square, again a plus b, a minus b, this given था 9। देखो यहाँ से इसने फाइंड किया है x plus y minus z, और ये है 4 upon x plus y plus z। फिर this square minus this square, again a plus b, a minus b, y plus z plus x और y plus z minus x, this equals to 9। तो y plus z minus x ये है 9 upon x plus y plus z, और ऐसे ही फिर तीनों इक्वेशंस को ऐड किया वहां पे, ठीक है। तो इजी ही सॉल्यूशन था, बाकी जिन लोगों ने सॉल्व एग्जांपल्स गो थ्रू किए होंगे उन्होंने डेफिनेटली करेक्ट किया होगा, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से, दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b यानी z प्लस x प्लस y यानी x प्लस y प्लस z इंटू a माइनस b यानी z प्लस x माइनस y, और ये वैल्यू है कितना बोलो? 36. This is equation 1, let's say equation 2, let's say equation 3. Now adding all the equations 1 plus 2 plus 3. अच्छा एक बात मेरे को ये बताओ, like PA plus PB plus PC, we can take common कितना? P common. Similarly, while adding equations 1, 2 and 3, we can take common कितना? X plus Y plus Z. Now add this and this, कितना आ रहा है बोलो उनको ऐड करने में? X plus Y plus Z. करेक्ट है। this x कैंसिल, y भी कैंसिल, माइनस z प्लस z कैंसिल, रिमेनिंग है y, x और z। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ऑन द राइट साइड 4 plus 9 13 plus 36 40
9 and 49 is perfect square of 7. ऑप्शन डी। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसको आप सेपरेटली अपने बुक में या नोट्स में इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करते हैं। 45 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस कर लेते हैं। 46 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? क्वेश्चन नंबर 46, given information is a cube is equal to 117 plus b cube and a is equal to 3 plus b, and then we have to find out the value of a plus b। ये क्वेश्चन है। Who will explain this question? चलो डिस्कस करते हैं। देखो, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक बी क्यू ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस एक्सप्रेशन लुक्स लाइक ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 117। यहाँ पर बी बी यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। While expanding a q minus b q, we will get a minus b. So a q minus b cube यानी a minus b in bracket a square plus b square plus ab, और ये है कितना 117। अभी a minus b ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। So this is like a square plus b square plus ab is equal to, ये वैल्यू है 3 and ये कैंसिल, 3 3 जा and 9 जा, करेक्ट है? Yes, sir. Now we have a square plus b square plus ab and a minus b, इजीली आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से ab, देन आप करना a plus b का होल स्क्वायर कंसीडर, वहां पे यूज होने वाले हैं a square plus b square plus 2ab। क्वेश्चन नंबर 47 तो क्लास में भी किया था। 47 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? What is the value of the following expressions? 1 plus x square। यार थोड़ा जग जाओ ना, जो लोग अभी भी सो रहे हैं तो उठ जाना चाहिए, ठीक है? अभी ये तो मैं आपको नहीं बोलने वाला बेटा उठ जाओ बार बार इस तरीके से। सो बेस्ट है, लेक्चर का टाइमिंग था तो थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8 into 1 minus x। हाँ बोलो। So please explain the question 46. 46 Yes. प्रांजल 46 अभी जस्ट डिस्कस किया है वैसे हम लोगों ने ना। Sir, I get left because of network problem. So a cube is equal to 117 plus b cube, ठीक? So a cube minus b cube is equal to 117। While expanding this expression, you will get a minus b into a square plus b square plus ab। ठीक है, a minus b वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, then you will get a square plus b square plus ab। 3 and 117, 3 3 जा 9, 27, 3 9 जा 27, ठीक है? ओके, अभी a minus b इसको एक्सपेंड करना मतलब होल स्क्वायर, then you will get a square plus b square minus 2ab is equal to 9। इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से आप फाइंड करोगे a into b and a square plus b square, ठीक है? Now we have to find out a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab। वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इजीली a plus b का आंसर। Now question number 47 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? In question number 47, 1 plus x into 1 minus x. This is like a plus b into a minus b, a square minus, यानी 1 minus x square। Now 1 minus x square into 1 plus x square, 1 minus x to the power 1 plus x square into 1 minus x square. This is like again a plus b minus b, a square minus b square, 1 square is 1 and x square is x to the power 4. Now 1 minus x to the power 4 into 1 plus x to the power 4, 1 minus x to the power 8. 1 minus x to the power 8 into 1 plus x to the power 8, final answer option B. option
1 minus x to the power 60. क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 48 रंजन एक्सप्लेन करोगे 48? Okay, sir. a square plus b square ये वैल्यू गिवन है 117 17. and a to b this is given as 54. Now we have to find out a plus b upon A minus b. So we can find here a plus b whole square is equal to a square plus b square. plus 2a. Yes. a square plus b square is 117 and 2ab is 108. ठीक है, और समेशन है यहाँ पे 225 is perfect square of 15. Now find a minus b whole square. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. a square plus b square is 117 minus 2ab यानी minus 108. Difference is 9. 9 is perfect square of 3. final answer 5. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? क्वेश्चन नंबर 49 बेटा अपने आप से वॉलंटियर करके बोलो यार, है ना. आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, हैंड रेज का ऑप्शन भी रहता है. क्वेश्चन नंबर 49 x plus 1 upon x ये गिवन है 3 सर क्यूब करके स्क्वायर करना है. हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन करोगे? सर पहले स्क्वायर करेंगे. अच्छा ओके, फिर स्क्वायर कर लेते हैं. सो a plus b whole square, a square plus b square plus 2 first into second, x into 1 upon x cancel, 3 square is 9, 2 right side यानी कि -2. तो x square plus 1 upon x square कितना आ गया अभी? 7. 7. Now So we can make it cube. ठीक है. सो नाउ दिस इज लाइक a plus b whole cube यानी a cube. x square cube is x to the power 6, b square cube is x to the power 6 1 upon में plus 3a और b into a plus b. a plus b is already given as सर -9 आएगा. 7. कहाँ पे -9 आएगा? सर 3ab into a plus b में. नहीं तो ठीक है ना, 3ab into a plus b तो 7 ही आएगा ना बेटे. is equal to 7 cube. 7 cube is 340. 343. हाँ, this x square cancel. 7 into 3 is 21. Transposition right side. So 343 minus 21. Final answer 322. Option D. क्वेश्चन नंबर 50 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? Sir, may I? हाँ बोलो. So first we should find the value of a square plus b square plus c square with the given information and then use the formula. How to find the value of a square plus b square plus c square? We will square on both the sides. Squaring both the sides. So you will get first squares. A square plus b square plus c square. Now 2 times pairs AB, AC और BC. This already given है कितना? 20 is equal to 11 square is 121. 2 into 20 40. Transposition right side 121 minus 40. 81. तो a square plus b square plus c square ये वैल्यू गिवन, सॉरी गिवन तो नहीं है, फाइंड किया है हम लोगों ने और ये है 81. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स abc. एंड ये फॉर्मूला बोलो अभी. A plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. करेक्ट है. a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus pairs minus ab minus bc and minus ca.
a plus b plus c ये ऑलरेडी गिवन था 11, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जस्ट अभी फाइंड किया हुआ है 81 माइनस ab माइनस bc माइनस ca माइनस 20. 81 minus 20 61 into 11 670. वन ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 51 कौन एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन नंबर 51. 2a minus 1 upon 2a, this value is given as a 3, and then we have to find out the value of 16a to the power 4 plus 1 upon 16 a to the power 4. ये क्वेश्चन है. देखो 2a minus 1 upon 2a स्क्वायर करते हो तो you will get a स्क्वायर, और फिर स्क्वायर करते हो then you will get a to the power 4. ठीक है, तो जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पे पावर 6, तो पावर 6 के लिए फर्स्ट स्क्वायर देन क्यूब 4 पावर 4 स्क्वायर एंड देन अगेन Square. squaring both sides. This is like a minus b whole square, a square यानी first term square 4a square plus second term square, 1 square is 1, 2a whole square is 4a square minus 2 times first term into second term. 2a cancel, 3 square is 9 minus 2 on the right side. तो 4a square plus 1 upon 4a square ये वैल्यू है 9 plus 2 यानी 11. Now again square. Square is 16a to the power 4. Square is 1 upon 16a to the power 4 plus 2 times first number into second number. और ये गिवन है 121. गिवन नहीं है मतलब जस्ट 11 स्क्वायर 121. ये कैंसिल, 2 ऑन द राइट साइड. फाइनल आंसर 119 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 52 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं मैं, आप क्वेश्चन नंबर 52 एक्सप्लेन करते हो तो करेक्ट एक्सप्लेन करते हो. क्वेश्चन नंबर 52. Question number 52 is a square plus b square whole cube is equal to a cube plus b cube whole square. ठीक है, again this is like a plus b whole cube, a cube यानी a to the power 6 plus b cube यानी b to the power 6 plus 3ab या 3a square b, ऐसा भी कर सकते हैं. 3a square b plus 3a और b square is b to the power 4. On the right side, this expression is a plus b whole square, a square यानी to the power 6, b square यानी b to the power 6 plus 2ab, 2aq और b cube. a to the power 6 and b to the power 6 cancel. Now transposition, take this on the left side. देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट है तो लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं है रिक्वायरमेंट. अच्छा ये बताओ 3 और 3 कॉमन, 3 a to the power 4 और a square कॉमन, a square b square और b to the power 4 कॉमन, b square. Now remaining expression is a square plus b square, and on the right side 2a cube and b cube. A square b square a cube b cube cancel ab times. So a square plus b square 3 times is equal to 2 times of ab. ये इंफॉर्मेशन जो गिवन था उसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने. Now we have to find out the value of this expression, and this expression is a upon b plus b upon a power 6. Multiply and divide with a, multiply and divide with b. Denominator ab and numerator a square plus b square.
Now a square plus b square upon ab is equal to 2 upon 3, यानी ये वैल्यू है 2 upon 3. Now final question is 2 upon 3 power 6. 2 to the power 6 is 64. and 3 to the power 6. 729. 3 square 9, 3 to the power 3 27, और फिर आता है 81, then 243, then 729. Option B. Now question number 53. ये प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन थे, डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड आउट T5. T5 का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म, T6 यानी सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस. जीरो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी क्या होता है बोलो? They have a common difference. Common difference, यानी difference of consecutive terms will be same, like second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term will be same. ठीक है. Here common difference is 1 upon, this is 0 kg, this is 250 grams, half kilo है ना, this is half kg, this is 3/4 kg, यानी कंटिन्यूसली 250 ग्राम्स ऐड हो रहा है यहाँ पे. सो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. एंड फर्स्ट टर्म जिसको डिनोट करते हो आप स्मॉल ए से, ये गिवन है 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T5. T5 यानी T4 टर्म, 5 यानी फिफ्थ टर्म, एंड दिस इक्वल्स टू a प्लस 4d, a प्लस 5 minus 1 into d यानी a plus 4d, and T6 will be a plus 6 minus 1 यानी 5d. a is a 0, 4 and d is 1 upon 4 cancel, यानी आंसर is 1. a is 0, 5 and d is 1 upon 4, यानी आंसर is 5 upon 4. So final answers are 1 and 5 upon 4, option A. Now question number 54. Which term of the arithmetic progression is 420? ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 54. तनुज एक्सप्लेन करोगे आप क्वेश्चन नंबर 54? करेक्ट है आपका आंसर तो. वेदांत एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर 54? क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं. विच टर्म ऑफ सर द 21 ऐड होते जा रहा है. अच्छा फिर आगे देन 21 ऐड होते जा रहा है, बिल्कुल सही है. यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 21. नाउ क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 420? divided by 21. We have the formula of nth term, Tn is equal to a plus n minus 1 into D. d, where Tn का मतलब होता है nth term. nth term given है यहाँ पे 420. a is first term which is 21. Value of n we have to find out. d यानी common difference, ये है 21. Now इसको करना है आपको सिंप्लीफाई. 21 कॉमन भी कर सकते हैं. 21 कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस n माइनस 1, और ये है 420. 1 and 1 कैंसिल, 21 कैंसिल to 0. फाइनली n इज इक्वल टू 20. एंड यार देखो वैसे भी ये 21 के टेबल जैसा हो गया ना, 21, 42, 63, 84, 10
10th टाइम देखोगे आप तो वहां पे आएगा 210, बट ये है 210 का डबल, यानी 20th टाइम रहा होगा ये, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है यहाँ पे 10, 4, -2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंसेस 6 6 और समथिंग एल्स -6 -6, एवरीथिंग विल बी विद साइन एंड विदाउट सिली मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -6 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म। 15th टर्म का फॉर्मूला विल बी a plus 15 minus 1 into d, यानी a plus 14d 14d, where is फर्स्ट टर्म है 10, 14 तो 14 ही है, d है -6। 14 5 जा 70, 46 जा 84, -84 plus 10, फाइनल आंसर -74. -74 option B. Now question number 56. If the kth term of the arithmetic progression is this, then we have to find out the value of k. अब देखो अगेन ये 25 के टेबल जैसा हो गया, 10th टाइम करोगे तो आएगा 250, बट यहाँ पे है 1000। 1000 होता है 250 का 4 टाइम, यानी 40, ऑप्शन सी। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a plus n minus 1 into d। nth टर्म इज गिवन एज 1000, a यानी फर्स्ट टर्म, ये है 25, n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, d है कॉमन डिफरेंस विच इज 25, अगेन 25 कॉमन और रिमेनिंग है 1 plus n minus 1, 1 and 1 कैंसिल, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 1000 कैंसिल, 25 4 जा एंड 0, फाइनली n is equal to 40, यानी 40th term, ऑप्शन सी। Question number 57. If the summation of first 20 terms of an arithmetic progression whose first term is 5 and common difference is 4, if नहीं है, basically summation find करना है। So what is the formula for summation of arithmetic progression of n terms? इसको बोलते हैं SN, summation of n terms। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? n upon 2, a number plus of n हाँ number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, n upon 2 number of terms upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। n is number of terms given है 20, 20 upon 2 into 2a, a यानी first term is given as 5, 5 into 2 is 10, again n यानी number of terms, 20 minus 1 यानी कि 19, और d है कॉमन डिफरेंस, ये है 4, 19 4 जा 76 plus 10 86। Now 10 into 86 is 860, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं। टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैविंग इक्वल कॉमन डिफरेंसेस, two arithmetic progressions having equal common differences. The first term of one of these is 3 and that of other is 8, यानी AP1 arithmetic progression 1, arithmetic progression 2, first term given है 3, first term given है 8, common difference है दोनों में same। Now question is the difference between their 100th term, ठीक है। सो 100th टर्म विल बी अगेन a plus n minus 1 into d, यानी 3 plus 100 minus 1 यानी कि 99d। यहाँ पर a plus 100 minus 1 यानी 99, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो? डिफरेंस इज 5. 5, ऑप्शन बी। Now question number 59. The summation of first 51 terms of the arithmetic progression whose second term is 2 and fourth term is 8. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 59। So may I explain? एक मिनट,
हाँ बोलो प्रांजल। The second term is 2, then a plus सेकेंड टर्म विल बी a plus d, a plus 2 minus 1 into d यानी a plus d, a plus d given है आपको 2, फोर्थ टर्म यानी a a plus, plus 3d is equal this to is 4. given as 8, Yes, and yes. then we have to find out the summation of first. 51 terms. What will be the formula? Again n upon 2 into 2a plus n minus Minus 1 यानी into d. 51 minus 1 यानी 50d, ठीक है, and n is 51. नेक्स्ट स्टेप बोलो। Then sir we will find the a. Using these two equations we can find out the values of a and d. d. How to find out the value of a and d? Sir, we have to subtract the equations. a and a cancel, d minus 3d यानी minus 2d on the right side, 2 minus 8 यानी कि minus 6, minus cancel, d is equal to 3. 3. a is equal to 3, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ऐसा, so a plus 3 is equal to 2 यानी a is equal to Minus 2 minus 3 यानी minus 1, और फिर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो 51 upon 2 we can take common 2, remaining a plus 25d, a है minus 1, 25 times d, 25 3 यानी 75 minus 1 74, फाइनल आंसर विल बी 51 into 74. ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट शुड बी 4. 4. ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 16 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? क्वेश्चन नंबर 60। Question number 60 is 3 alternate terms of an arithmetic progressions are this, this and this. Then we have to find out the value of x. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि if a b c are 3 terms of an arithmetic progression, अगेन देखो कॉमन डिफरेंस तो फिक्स ही रहेगा, यानी b minus a should be equal to c minus b. Second term minus first term will be same as third term minus second term, minus b on the left side using transposition and minus a on the right side. So b plus b यानी 2b and right side में है a plus c, यानी मिडिल टर्म का डबल is equal to first term plus third term. अल्टरनेट के लिए भी चीज अप्लाई हो जाती है यहाँ पे ना, so again 2 times of middle x minus y is equal to first x plus y plus last 2x plus 3y. So 2x minus 2y is equal to 3x plus 4y. Now using transposition, take this on the right side, this on the left side. So minus 2y minus 4y यानी minus 6y and right side में 3x minus 2x यानी x. So x is equal to minus 6y, option D. Any other question in this paper? इस पेपर में और कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। यानी काफी लोग ऐसे जो रिप्लाई नहीं करते हैं ना, ये खैर हम लोग उससे गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि जस्ट उठ के 8 बजे का लेक्चर था 8 o'clock पे और 7:59 पे उठ के मैंने लेक्चर लिया, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, रेडी रहते हैं, तो आपको भी सेम होना चाहिए। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है आपको उठाने की, है ना। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं।
सो मुबारक सर ने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर और कर लेते हैं और आपका मैथ्स टेस्ट एक सेकंड से पहले एक शेड्यूल और करते हैं. सिलेबस विल बी स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूले एंड प्रोग्रेशंस. ठीक है, प्रोग्रेशंस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस. एक बार थ्योरेटिकल पार्ट मैं 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. तो क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीरीज होते हैं. सीरीज में क्या होता है, पर्टिकुलर एक ऑर्डर फिक्स होता है. ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो गया, हिंट गिवन होगा कि देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंस सेम है, देखो यहाँ पे रेशो सेम है, यहाँ पे ये फिर ये सेम है. मेंटल एबिलिटी में तो इन्फिनिट टाइप के सीक्वेंस बनते हैं. मैथ्स के अंदर हम लोग कुछ फिक्स टाइप के सीक्वेंस स्टडी करते हैं, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशन मिक्स हो जाता है वहां पे. मेनली इस साल हम लोग कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन सम एक्सटेंट तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, रेशो फिक्स होता है, अरिथमेटिक के अंदर डिफरेंस फिक्स होता है. इजीली विजुलाइज हो जाता है, ये ना टफ नहीं होता है. जैसे सपोज करो ये सीक्वेंस है लाइक 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन, और एक सीक्वेंस है दिस 2 6 18 54 एंड सो ऑन. इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? बोलो. Sir, first one it is arithmetic, and second one it is. Sir, what is after 18? After 18 there is 54. After 18 there is 54. Okay, sir. The second one is geometric progression because it is multiplied by 3. एग्जैक्टली लाइक अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है, समेशन सॉरी डिफरेंस फिक्स होता है. मतलब पर्टिकुलर एक नंबर वहां पे ऐड होगा और इधर सब्सट्रैक्ट होता है. सेकंड सीरीज होता है ज्योमेट्रिक, वहां पे नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइड. लाइक फर्स्ट के अंदर +4 +4 +4 +4, सेकंड में इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक, यहाँ पे इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक. हार्मोनिक वगैरह भी होता है कुछ, वो बाद में देखेंगे. ठीक है, सो अरिथमेटिक का जो जनरल स्ट्रक्चर है अरिथमेटिक सीरीज का, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज बोल देते हैं इसको ऐसा. सो लाइक फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, देन सेकंड टर्म शुड बी a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d. कंटिन्यूअसली कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे बोलो? d एंड सो ऑन. ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट टर्म इज a, देन a प्लस d, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d. ठीक है, इसको बोलते हैं T1, कैपिटल T1 यानी फर्स्ट T4 टर्म. दिस इज कैपिटल T2 सेकंड T4 टर्म, कैपिटल T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म. अब एक ऑब्जर्वेशन ये है, लाइक सेकंड टर्म में देयर इज 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d. So how much d in 100th term? 99. 99d. 1d कम है यहाँ पे. फोर्थ टर्म में 3d, थर्ड टर्म में 2d, सेकंड टर्म में 1d. And how much d in nth term? n minus n-1. exactly. So nth term will be a plus n minus 1 into d. तो nth term का ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं होता है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से आता है. सो tn फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. nth टर्म a plus n minus 1 into d. फिर आता है समेशन, sn यानी कि समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ n टर्म्स. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2. वर्ड्स में पता होना चाहिए ना, बेस्ट रहता है. a यानी फर्स्ट टर्म, स्मॉल a यानी फर्स्ट टर्म, एंड tn यानी nth टर्म. या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो वर्ड्स में, है ना. Number of terms upon 2 into first term plus last term.
करेक्ट, लास्ट टर्म यानी tn एंड दिस इज a। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन नहीं होता, तो फिर वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ a प्लस a इज 2a, और ये फॉर्मूला बनता है फिर दिस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। So Sn is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. We can use this formula or this formula according to given information in the question. Done. इसका प्रूफ देख लेते हैं, काफी सिंपल सा प्रूफ है। Let Sn a plus d, काफी मेथड्स होते हैं एक्चुअली इसको प्रूव करने की भी, एक मेथड जो है वो देख लेते हैं। और लास्ट टर्म है लेट्स से b। अच्छा, लास्ट टर्म सपोज करो b है, सो इसके प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए, b माइनस d। बिफोर दिस b माइनस 2d। 1। Okay, if we consider last term as v, then what should be the second last term? b minus d। b minus d। ये कैसे आ रहा है, d ऐड करके राइट साइड में मूव कर रहे हैं हम लोग, तो 4 लेफ्ट साइड सब्सट्रैक्ट d। जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 ऐड करने पे राइट साइड आ गए, तो 3 माइनस करने पे लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, तो ये हो गया b, इसके पहले b माइनस डी, फिर b माइनस 2d एंड बिफोर दिस b माइनस 3d एंड सो ऑन। अभी क्या करते हैं ना, इसी समीशन को ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो इससे समीशन चेंज होता है क्या, लाइक 2 प्लस 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 प्लस 2 एग्जैक्टली सेम। सो b, इसके बाद में b माइनस d, देन b माइनस 2d, और अभी लास्ट में आएगा a, बिफोर दिस a प्लस d एंड बिफोर दिस a प्लस 2d। अभी क्या करते हैं, बस हो गया प्रूफ यार, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, Sn प्लस Sn 2Sn a प्लस b, दिस समेशन again a plus b, this is also a plus b। this is also a plus b, this is also a plus b, and this is also a plus b. How many terms are there, n terms। तो a plus b, फिर a plus b, फिर a plus b, फिर a plus b, फिर a plus b, एप्पल 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 n टाइम्स, यानी n एप्पल्स। तो Sn is equal to n upon 2 into a plus b, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into फर्स्ट टर्म प्लस और फिर वहां पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर ये इजीली प्रूफ हो जाता है। एक पॉइंट और, ये अच्छा ये फॉर्मूला नोट कर लो यार, मैं इस पे क्वेश्चंस करने वाला हूं, ऑलरेडी नोट किया होगा वैसे आप, फिर भी नोट कर लेते हैं। tn is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। nth term, and summation of n terms is this, number of terms upon 2 into first term plus last term, or we can write number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। एक पॉइंट और, like a b c are in arithmetic progression। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सिंपल सा पॉइंट है, माइंड में होना चाहिए। डबल ऑफ मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म।
times of middle term is equal to first term plus थर्ड टर्म, करेक्ट है? तो बस जस्ट इतना ही फॉर्मूला इसमें, tn समेशन, और एक ये इंपॉर्टेंट नोट, डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। करते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक एग्जांपल फर्स्ट है दिस k plus 2 comma 4k minus 6 comma 3k minus 2. This sequence is given as arithmetic progression, then find out the value of k. करो ट्राई। k plus 2, 4k minus 6 और 3k minus 2 is given as arithmetic progression, then find out the value of k. k plus 2, 4k minus 6 और 3k minus 2. k equals 3. Again simple concept है, double of middle term is equal to first term plus third term. ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। Okay, so double of middle term is equal to first term plus third term, यानी 8k minus 12 is equal to 4k, 2 and 2 cancel, 4k using transposition left side and minus 12 on the right side. तो 8k minus 4k यानी 4k is equal to 12, so finally k is equal to 3. तो काफी ज्यादा इजी सा ही क्वेश्चन था, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सॉल्व करो। 5 plus 13 plus 21 and so on, which number of term will be 181? Which number of term will be 181? So हाँ बोलो। then the plus summation. Last question. No. Do we need to addition there? Add there? बेटा ये ऐड नहीं करना होता है, ये ऐड नहीं करना होता है, सीक्वेंस को एक्चुअली प्लस साइन से शो करते हैं। This is the same as this 5, 13, 21 and so on. Understood? Okay. Yes, sir. जो सीक्वेंस होता है ना, वहां पे either we can use comma or we can use plus sign. Now question is which term of this 23. will be 180? 23. Okay, देखते हैं। A यानी फर्स्ट टर्म क्लियरली 5,
D यानी कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे कितना बोलो 8. 8 nth term. Formula is Tn is equal to a plus n minus 1 into D. Now just put the values. Tn nth term 181, a is first term yani 5, n we have to find out, D yani common difference 8. Now using transposition, take 5 on the left side. 181 minus 5, 170, 6 and 8 यहाँ पे divide. 176 upon 8 is equal to 22. 22. N minus 1 is equal to 22 and n is equal to 23. 23 या 23rd term will be 181. If any student having any doubt in any concept or any question, आप लोग बोल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. An arithmetic progression having T5 यानी fifth term 11, T9 यानी ninth term as a 7, then find out T16 यानी 16th term. Fifth term given है 11, ninth term given है 7, then we have to find out the 16th term. Sir, D is equal to -1. -1. बेटा आंसर चैट बॉक्स कर दो, आप आंसर चैट बॉक्स कर दो. This is T16. T5 is 11, T9 is 7, then we have to find out T16 and the 16th term. संस्कार प्रांजल करेक्ट आंसर. वेरी गुड. प्रांजल एक्सप्लेन करोगे आप? Yes, sir. हाँ. So T5 means A plus 4D is equal to 11 and T9 is equal to A plus 8D, which is equal to 7. So we will minus them and we will get the D is equal to -1. Now voice is audible? Yes, sir. Okay. T5. T5 any fifth term A plus 4D, which is is equal given to as 11. 11. T9 will be A plus 8T, this is given as 7. Now first equation minus second equation.
A and A cancel. 4D minus 8D यानी minus 4D is equal to 11 minus 7. 4 Clearly D is equal to. minus 1. Now put D in any one of the equation. Let's say first equation. So A minus 4 is equal to 11. A is equal to 15. 15. 15. Finally, we have to find out T16. T16 will be A plus 16 minus 1 यानी 15D. 40. 15D बेटा. A है 15 plus 15 into D है minus 1. 15 minus 15 आंसर. 0. देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे T5 गिवन था 11 और T9 गिवन है 7. ठीक है, तो T5 to T9 टोटल कितने टर्म्स होते हैं? 4 टर्म्स. और कितना समय टर्म का वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे? 4. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर किसी के ऊपर, सारे टर्म्स के ऊपर. तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 ऑन 4 टर्म्स, यानी हर टर्म के ऊपर एक्स्ट्रा कितना आ रहा होगा? -1. -1. नाउ T9 से लेकर के T16 तक 7 टर्म्स. -1 -1 -1 -1 7 टाइम्स यानी -7. 7 minus 7 आंसर. 0. ऐड भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on. This is arithmetic progression such that A5 plus A2 minus A3 ये गिवन है आपको 10. A2 plus A3 is given as 17. इसको A9 कर लेते हैं. Then find out the value of first term and common difference. ये टेबल A5 plus A2 minus A3. A5 यानी फिफ्थ टर्म, A2 यानी सेकेंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म. A2 second term, A9 ninth term. First equation is equal to 10, second equation is equal to 17. Then we have to find out A1 यानी कि first term and D यानी common difference. ये क्वेश्चन है. A5 is A1 plus 4D. correct है, plus A2 is A1 plus D and A3 is A1 plus टू डी. A1 कैंसिल, रिमेनिंग है A1 प्लस 4D प्लस D यानी 5D माइनस 2D Yes. प्लस 3D इज इक्वल टू 10. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. A2 यानी A1 प्लस D, D. A9 A1 plus 80. this is given as 17. A1 plus A1 यानी 2A1 plus 9D is equal to 17. Now solve these two equations and find the values of A1 and D. You can use any one of the method, elimination, substitution, use कर सकते हो कुछ भी. So first equation को multiply करते हैं with either. पहले तो देखो ये डिसाइड कर लो, यहाँ पे डिसीजन ले लो कि आपको A1 एलिमिनेट करना है या फिर D एलिमिनेट करना है. लेट्स से A1 एलिमिनेट कर देते हैं. तो A1 में सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2, सो फर्स्ट इक्वेशन में भी कोफिशिएंट 2 आना चाहिए. यानी फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विथ 2. 2A1 plus 6D is equal to 20.
Now first equation minus second equation. 2a1 cancel. 6d minus 9d minus 3d and 20 minus 17. D is equal to minus D is equal to -1 और ये D is equal to -1 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर यहाँ पे पुट कर लो, एक ही बात है, कहीं पे भी पुट कर तो चलता है। यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो D is equal to -1 यानी a1 minus 3 is equal to 10, a1 is equal to 13. So first term है 13 and common difference is -1. करेक्ट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 24 plus 20 plus 16 plus 12 and so on. How many terms will be having summation या फिर addition is equal to 72? ये क्वेश्चन है। How many terms will be having summation 72? How many terms will be having summation 72? Here we have to use the summation formula. What is summation of n terms? N upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is first term, d is common difference, and n is number of terms that we have to find out. Here first term is 24, common difference is 4 बेटे 4 नहीं है common difference, -4. हाँ, क्योंकि +4 नहीं हो रहा है, -4 हो रहा है, तो d is -4. ये वैल्यूज आप यहाँ पे एज इट इज विद साइन सब्स्टिट्यूट कर दो एंड समेशन इज गिवन है 72, तो n अपॉन 2 2a यानी 48 n minus 1 एंड d is -4. ठीक है, सो -4 इंटू n यानी -4n, माइनस माइनस प्लस यानी +4. So this is n upon 2. 48 plus 4 is 52 minus 4. We can take common. कितना कॉमन आएगा यहाँ पे बोलो? 4 कॉमन. 4 कॉमन. Remaining 13 minus 2 times cancel 72 और ये भी cancel 36 times. Now equation is 36 is equal to n into 13 यानी 13n and n into minus n is minus n square using transposition left side. और ये बनेगा अभी this n square minus 13n plus 36 is equal to 0. This is quadratic equation, middle term split and factors. ये आपको लास्ट ईयर सिखाया था, इस साल वैसे वापस एक बार रिपीट करने वाले हैं इसको, है ना, फॉर रिवीजन पर्पस, कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो. यू हैव टू ब्रेक 13 in 2 numbers such that their multiplication should be 36. 13 को ब्रेक करना है in 2 numbers such that their multiplication should be 36. कितना ब्रेक करोगे बोलो? 4 और 9. n common, remaining n minus 4.
Here also n minus 4. Now this number should be minus 9. overall common n minus 4 into n minus 9. is equal to 0. Two numbers का multiplication 0, either this is 0 or this 0. If this is 0, n is equal to 4. if this 0, then n is equal to 9, यानी 4 टर्म्स का समेशन भी 0 और 9 टर्म्स का समेशन भी 0. अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि 4 टर्म्स और 9 टर्म्स दोनों का समेशन 0 आ जाए? जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स का समेशन चेक करते हैं. 24 प्लस 20 यानी 44 प्लस 16 60 और 60 प्लस 12. 72. अच्छा, ये बताओ, जैसे 4 टर्म्स है, ये समेशन भी 72 और 9 टर्म्स है, दिस समेशन इज आल्सो 72. डेफिनेटली इसके बाद में जो 5 टर्म्स आ रहे होंगे उनका समेशन कितना होना चाहिए? भाई 4 टर्म्स का समेशन 72 और 9 टर्म्स का समेशन भी 72, यानी बाद में जो 5 टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स समेशन 72, 9 टर्म्स समेशन अगेन सर 0 आना चाहिए. 72. तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ये जो 5 टर्म्स हैं इनका समेशन कितना आना चाहिए? 0. तो 0 ही आएगा, चेक कर लेना आप लोग, है ना. 12 के बाद में आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 0, फिर आएगा -4 एंड देन -8. समेशन 0. 0. That's why 4 and 9, 4 terms and 9 terms both having same summation. Let's say 4 terms का summation होता 10 और 9 terms का summation होता 6. तो आगे 5 terms का summation कितना आना चाहिए? -4. ऐसा करेक्ट है. चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. आपको प्रोग्रेशंस का और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक शीट आफ्टरनून तक सेंड करता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करना, डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर से यार ट्राई करना थोड़ा सा एक्टिव रहने का, है ना. काफी लोग पता नहीं क्यों अदर एक्टिविटीज में बिजी हैं या फिर सो रहे हैं, जो भी है रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है. और नेक्स्ट टाइम से अपना कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है. So, हाँ बोलो. sir, I have a doubt in the test 60th question. 10th क्वेश्चन 16th question in the test. लाइक मैथ्स टेस्ट फर्स्ट क्या? 60th, yes. No, sir. 60th 60th question. क्वेश्चन 60th क्वेश्चन. ओके. Yes. हाँ बेटे बोलो. ये तो डिस्कस किया था ना जस्ट अभी, फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? Sir, because some network issue, I cannot. कर लेते हैं बेटे, कर लेते हैं. 3 alternate terms of an arithmetic progression. एक सेकेंड. ओके, हाँ. 3 alternate terms. एक मिनट, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड करता हूँ ना, ये थोड़ा मेरे को है लेफ्ट साइड. 3 alternate terms of an arithmetic progression are x plus y, x minus y and 2x plus 3y. x plus y, x minus y and 2x plus 3y. देखो अल्टरनेट टर्म्स का मीनिंग वैसे ऐसा लेते हैं हम लोग, लाइक ये होगा t1, then this should be t3 and this should be t5. अल्टरनेट टर्म्स, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म. करेक्ट है? Yes, sir. डिफरेंस d और 2d. 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 डिफरेंस d और 2d. 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 So basically difference सेम ही है, यानी we can apply 2 times of middle term is equal to first term plus Last term. हाँ मतलब थर्ड ही टर्म है ना, ऐसे लास्ट में कोई बहुत ज्यादा Yes. 1000 फर्स्ट टर्म नहीं है, थर्ड टर्म ही है. So 2 times of middle यानी 2x minus 2y. फर्स्ट है x plus y और थर्ड है 2x plus 3Y. 3y. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट. 2x कैंसिल, y plus 3y 4y and 4y using transposition left side. minus 2y minus 4y minus 6y और राइट साइड में रिमेनिंग है जस्ट X. और यही फाइंड करना था आपको. x is equal to -6y ऑप्शन. 4. Option D.
एनी अदर क्वेश्चन? देखो यार, सॉल्व करने के लिए काफी सारे शीट्स हैं, शीट्स में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेडी हैं। बस ये कि आप लोग सॉल्व करो टाइम पे और थोड़ा सा इंटरेक्टिव और क्यूरियस रह के चीजें पूछो ऐसा। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट हम पे करते हैं बाकी। और कोई डाउट है तो आप लोग कभी भी बोल देना, ऐसा नहीं कि संडे को ही बोलना होता है, वीकडेज में भी बोल सकते हो, चलता है, कोई इशू नहीं है। सेपरेट मीटिंग रख के वो डिस्कस कर लेंगे, है ना? ओके, चलो है ना भाई।